on this computer. Okay. So इसके लिए we need to go to the bank nifty here. Okay. Okay. Let me close everything. Bank nifty or any volatile stocks. So basically we Okay. can go for uh, any stocks or any index which is going to be volatile. For example, Nifty, Bank Nifty, pharma stocks, and Okay. all those. Okay, pharma stocks हो गया and those kind of Usually, stocks. usually which are the stocks volatile, sir? Stocks like in index Nifty and Bank Nifty, in stocks you can find like Dr. Reddy and Okay. stocks like Maruti in auto sector and like Okay. SDFC Bank. Okay. Those are highly volatile stocks. I mean, you can trade Okay, sir. those. Pharmaceutical stocks are highly volatile. Okay. Okay. Okay, sir. And if I will go to let's say ITC, Okay. if I will choose IOC, if I will choose let's Tata Motors or like that. So BHEL, 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 एक stock है ना BHEL बोल के. Okay. So in these kind of ये these stocks are मतलब ये ज्यादातर sideways में रहते हैं. तो इनमें you should avoid trading uh, in this strategy, specific strategy. उसके लिए दूसरा Okay. Okay. strategy होता है. So basically in Nifty and Bank Nifty the time frame should be 30 minutes. The more it will give you better result. Okay. Okay, sir. So I will recommend not to be less than 30 minutes. Okay, sir. But many people used to use 15 minutes, 5 minutes, but my recommendation is 30 minutes or above. Okay, the more it is, the good it is. Okay. Okay, sir. Okay. So we have around. Okay, Jyoti aa gayi. Hello, Jyoti. How are you? Okay, so we have now participants. Okay, sir. ठीक है. Yeah. ठीक है विद्यासागर. So I am just trying to do one thing. I'm now going to mute everyone. Okay, so basically आज का strategy we are going to start. Okay. Okay. And शुभम आ गए. Okay, चलो. हाँ जी शुभम. आगे मैं आगे सर. Okay, ठीक है. So basically you Good evening, you can. sir. Good evening, Jyoti. So basically you are so let's start the strategy. Okay, and also I'm recording everything. And the second is you can mute yourself, you can unmute yourself, and also you can use that chat option. You already know. So basically I will try my best to keep my language both in Hindi and English. Basically many members here are from South India, so they always request me to sir please also use English many times. Okay, so now I'm muting and let's start. Okay. So basically इस strategy के लिए what I need, we need volatile stocks and index like Nifty, Bank Nifty, volatile stocks like few top leading जैसे हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे HDFC बैंक हो गया, फिनेंस में बात करेंगे HDFC हो गया, ऑटो सेक्टर में बात करेंगे मारुति हो गया. Those are volatile stocks. Okay, so इन स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी अच्छा काम करता है बेसिकली. ओके, व्हेनेवर आई विल और अगर हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं लाइक आईटीसी, आईओसी, भेल, तो उसमें ये स्ट्रेटेजी उतना इफेक्टिव नहीं होता है. नंबर वन, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज tradingview.com ऑब्वियसली, बिकॉज मैं हमेशा इसको ही यूज करता हूँ. और मतलब फॉर एनालिसिस पर्पस. ओके, ट्रेड लेने के लिए तो हम लोग कुछ भी यूज करते हैं. दैट इज वन. जीरोधा हो गया, ऑप्स्टॉक्स हो गया, एलाइस ब्लू हो गया, कुछ भी हो गया. लेकिन फॉर एनालिसिस पर्पस आई ऑलवेज यूज टू यूज ट्रेडिंग व्यू. वन. टू इज द टाइम फ्रेम. द टाइम फ्रेम इज 30 मिनट और अबव. ओके, द मोर इट इज द गुड इट इज. जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है. 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट are not recommended when you are preferring option. अगर आप बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऑप्शन में करते हैं, राइट. सो व्हेन यू आर प्लेइंग विथ ऑप्शन, सो बेसिकली ऑलवेज यू शुड चूज 30 मिनट्स एंड अबव. 15 मिनट इज एवरेज, but 30 minutes and above is highly recommended. If you are in future, then this strategy you should not follow, because in future if you are a scalper or an intraday trader, you should go with 1 minute.
1 minute time frame or 3 minute time frame maximum if you want to work in future Nifty or Bank Nifty future. Okay, so now let's coming back to the topic. I'm going to use tradingview.com 30-minute time frame. My theme is this black theme. You can use your default white theme, whatever, based upon your preference. Third thing, I'm going to use option. Okay, next. Okay, we are going to use 3 indicators, 3 simple, very simple indicators. Okay, 3 इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स. Number 1 indicator is one moving average exponential. I'm going to use this one. Okay, I'm now clicking here for the style. Length 200. Okay, and color I always use yellow color because yellow looks prettier over a black background. ये अच्छा लगता है ब्लैक के ऊपर येलो. सो एमा 200. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एमा एंड वो सब हम लोग उतना टाइम नहीं है. बेसिकली वी आर गोइंग टू सिंपली लर्न ए सिंपल स्ट्रेटजी दैट एवरीवन कैन back test and implement it in your current or future your trading sessions, right? Simple. So first indicator बन गया EMA 200. okay, second indicator हम लोग डालेंगे UTBot. क्या हो गया इसका UTBot 3272. ओके, इसमें लाइक्स है UTBot. आई हैव क्लिक्ड. ठीक है, सो जब आप UTBot में एक्चुअली UTBot इज, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ. मैं UTBot को मैं काफी पसंद करता हूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू सिग्नल्स. इट इज गोइंग टू गिव यू सेल सिग्नल. इट इज गोइंग टू गिव यू बाय सिग्नल. ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू वेयर टू कीप योर स्टॉप लॉस. ठीक है, ये आपको स्टॉप लॉस भी बताएगा और आपको ये सिग्नल भी देगा, बाय सिग्नल एंड सेल सिग्नल. लेकिन ये जब बाय बोलेगा तब हमको बाय नहीं करना है, ये जब सेल बोलेगा तब भी हमको सेल नहीं करना है. हमको क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फिल्टर इट. एंड हाउ टू फिल्टर इट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके सिग्नल को हम लोग कैसे फिल्टर करें. फॉर नाउ यू कैन सी इसमें एक स्टॉप लॉस लाइन आ रहा है, राइट? सिंपल. और बार में कुछ ऐसे कलर्स टाइप का चेंज हो गया जब मैंने UTBot को इस्तेमाल किया. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू UTBot का सेटिंग एंड क्लिक द स्टाइल टैब. ट्रेल स्टॉप लॉस को बंद कर दिया, बार कलर को चेंज कर दिया. सो अभी मेरे पास बस बाय सिग्नल है और सेल सिग्नल है और कुछ भी नहीं है. ओके, सिंपल बाय सेल एंड नथिंग. आई वांट नथिंग मच मोर देन दिस बाय सिग्नल एंड ए सेल सिग्नल. सो नाउ आई हैव टू इंडिकेटर्स. हो गया, अभी हमारे पास 2 इंडिकेटर्स हैं. एक हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 एंड सेकेंड वन इज UTBot. UTBot इज बेसिकली ATR में का, ये एक्चुअली व्हाट इज ये जो है UTBot का मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ. UTBot दरअसल क्या करता है कि UTBot जो है वो ATR को लेता है. ATR एवरेज ट्रू रेंज. ओके, ATR को लेके ये अपना सेल और बाय सिग्नल देता है. ओके, सो एनीवे उसको you can research it yourself. There are many things in TradingView that you can research, and believe me, TradingView is one of the most powerful analytic tool if you can use it. Okay, next 2 इंडिकेटर बन गए और इसका अगर इनपुट देखें UTBot का, it is ATR period is 10 and here it is 3. I am going to make it 30 and 2. Okay, you can take it like 10 and 3, no issues, but for perfect इसको बनाने के लिए 30 and 2. okay, and it is going to work excellent with 30-minute time period. इसको थोड़ा सा आप जो है बैक टेस्ट करने के बाद you can modify it yourself as per your convenience. आपको जैसा सही लगे आप इसको ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट. सो 2 इंडिकेटर हो गए. EMA 200 नो चेंज, ओनली मैंने इसका कलर को येलो कर दिया बिकॉज द बैकग्राउंड इज ब्लैक. सेकंड इज UTBot का ATR पीरियड को हम लोगों ने कर दिया 30 एंड की वैल्यू इज 2. सिंपल. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें थर्ड इंडिकेटर डालेंगे, सिंपल सा इंडिकेटर MACD.
ओके एक सेकेंड ओके कुछ डाउट हो ना तो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी, आप मेरे को पूछ सकते हो हिंदी में एंड इंग्लिश में, और चार्ट भी यू कैन यूज ओके अगर कहीं पर अगर आपका डाउट हो तो ओके एंड और थोड़ी देर बाद वंस आई विल ये जब कंप्लीट हो जाए देन वी कैन आल्सो टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड अगर किसी का कहीं पर कुछ डाउट है, ठीक है। सो नाउ एमा हो गया, यूटीबॉट हो गया, एक मैगडी हो गया। मैं मैगडी के ऊपर भी कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग ओके। इसके ऊपर काफी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा यूट्यूब में, तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आई एम गोइंग टू यू नो मेक इट वेरी सिंपल, इवन आई एम गोइंग टू यू नो लाइक दिस। ये मैगडी और सिग्नल लाइन को भी मैंने काट दिया और इसको और थोड़ा सा बेहतरीन करते हैं। ये जो आपका ये है ना, इसको एरिया एरिया कर देते हैं, ठीक है। सिंपल, so a simple MACD without any signal line, MACD line, a simple moving average and one UT bar. Just 1 second. कौन बोलो? खाली 10टा बोलो। 10 o'clock. सुनता था तो 10 o'clock. Okay. So. Sir, can you tell me how did you do that MACD? Sorry. Can you just explain how that MACD you did that variance? Okay. Okay, nothing to worry on that because I'm also going to share this video in your WhatsApp also. Okay. Still I'm doing it again. Okay. In MACD there is a setting option here. Go to setting and remove the MACD line, remove the signal line, because in this strategy specifically I'm not going to look for that crossover. Okay, so basically I don't need MACD line and signal line. And here you can see the color option. Here you can see the bars. That's why in MACD the bars are coming. इधर बार आ रहा है ग्रीन में और नीचे आ रहा है हिस्टोग्राम में रेड में आ रहा है. The reason is here it is in columns, okay, in bars. So I'm going to do it. I'm going to change it to area. Clear? हो गया तो? Okay sir. Okay, thank you. हाँ समझ। चलो तो ये हो गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। दिस लेआउट टू बी सेव्ड, यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो बिकॉज वंस यू सेव इट देन इट इज गोइंग टू यू नो वर्क इन अदर टैब्स आल्सो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस ब्राउजर को ओपन करोगे देन दिस स्ट्रेटजी विल बी एज इट इज यू हैव लेफ्ट हियर। सो अभी हम लोग का 3 indicators हो गया complete. One is exponential moving average 200, UT bot with a setting of 30 and 2, time frame is 30 minute, MACD, simple histogram with area, और कुछ नहीं इसमें करना। Done. Okay. Next is okay. Before jumping into the strategy, 2 things to keep in mind. जैसे कि market sentiment आपको पहले दिन से थोड़ा बहुत clear होना चाहिए। ओके अब यहाँ पर बाय और सेल, हाँ इट्स ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इट्स ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट ए स्विंग स्ट्रेटेजी। समटाइम्स इट इज ए स्विंग स्ट्रेटेजी बट मेनी टाइम्स इट इज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। 1 2 इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी, इट इज ए इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। बट इफ यू हैव बेसिक नॉलेज, अगर आपका थोड़ा भी नॉलेज है प्राइस एक्शन के ऊपर, देन यू कैन डू मैजिक्स इन दिस स्ट्रेटेजी। इसमें अगर आप इफ यू कैन ऐड प्राइस एक्शन इन दिस स्ट्रेटेजी देन इट इज गोइंग टू वर्क सुपर्बली एक्सीलेंट in your trading sessions. So now let's remove the drawings again, clean chart, everything is clear now. Okay, simple. Number one thing to note is the market should not be sideways. The market should not be sideways. Okay, अभी the current market जो चल रहा है, you cannot predict कि current market तो sideways होगा कि नहीं होगा. I don't know whether the current market is going to be sideways or not. No one can know, right? Simple. But the history, you can predict from the history. For example, here, let's say today I entered here.
दिस इज 14th में, एंड आई कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर जो है देयर इज नो क्लियर सिग्नल, इट्स सिंपल, यहाँ पर जो है अपना एक रेंज में ये चल रहा है, उसलिए सिंपल। ओके, सो बेसिकली ट्राई टू अवॉइड एनी मार्केट, ये बस मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, any stock, any nifty or bank nifty, whatever you are going to trade, please be ensure, make sure कि market is moving somewhere, वो कहीं तो जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, कहीं तो जा रहा है। if it is in a very stock situation, if it is in a very you know छोटे से चैनल में चल रहा है तो उसको ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज where to take buy and sell। अब सिंपल सी है, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू नोटिस, अगर एमा 200 के ऊपर है, इफ इट इज अबव एमा 200, नंबर वन कंडीशन, एंड वी हैव ए बाय सिग्नल, we are always going to consider buy signal, simple, we are always going to consider buy signal। okay, if जो लास्ट हम लोग का ट्रेडिंग कब हुआ था, फ्राइडे को ट्रेडिंग हुआ था एट 11:15 को इन आवर पब्लिक टेलीग्राम चैनल, जब एक्चुअली आई हैव आस्क्ड टू बाय कॉल ऑप्शन, राइट, टू गो फॉर सीई इफ यू आर इन आवर पब्लिक चैनल, सिंपल। सो यहाँ पर हमको बाय सिग्नल मिला था। एनीवे, आल्सो आई हैव कंसीडर्ड प्राइस एक्शन, आई एम नॉट I don't use indicator in my personal tradings, I always use price action। so anyway, number one, if it is above 200 MA, अगर ये 200 MA के ऊपर है, then we are going to consider buy signal, number one। and always avoid these sell signals, first one। also you can see this, you can also combine it with your MACD, the simple MACD that we have currently customized it for ourselves। otherwise अगर आप RSI भी यूज करते हो और stochastic भी यूज करते हो कि if you want to if you want to filter it, कि अगर मैं यहाँ पर बाय करूंगा then RSI should be above 50 or 60 or 70, whatever rules जो आप लोग फॉलो करते हो, that you can also add with this strategy। okay, for now this should be it's a non red। यहाँ पर देखिए एक जो है नीचे की तरफ एक ऑरेंज होगा और एक व्हाइट होगा, ऊपर की तरफ एक ग्रीन होगा एंड व्हाइट होगा। इसका मतलब सिंपल है, when it is in red, यानी कि ये मैकडी का जो रेड बार्स जो बनता है, यानी कि डीप सेल में होता है, और फिर यहाँ से जो है वीकनेस आता है और फिर ये धीरे धीरे बाइंग में जाता है, then the uptrend becomes weak and it goes to sell, then the sell becomes weak and it goes to buy। simple, इतना ही चीज होता है, इतना तो आपको पता ही होगा सबको। okay, so number one is okay, हाँ, above 200 MA buy signal from our UT bot, and third thing is the high, you can wait, first let's see, just 1 second, and in MACD it should not be red when you are considering buy, it is either to be like this white, else it is to be in green, simple। और अगर स्टार्टिंग में अगर आपको ये दिखाए like this condition here, it is one of the excellent entry, it is going to be an excellent entry here। Here also we can consider, here also we can consider, here also we can consider। now no it is not going to be considered, no, it is below 200 MA, right, done। so buy का हो गया क्लियर। अब आते हैं सेल में। सेल में 200 MA के नीचे होना चाहिए, नंबर वन, एंड ए सेल सिग्नल and the transition from uptrend to downtrend, it is going to work excellent। बाय तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, राइट। अगेन ए सेल हियर, यहाँ पर भी देखिए व्हाइट है,
Okay, we can also, and remember one thing, this the next 30-minute candle is enough because it is a 30-minute candle, it is not a 1 minute or 5 minute candle. ये वो 1-5 मिनट का तो कैंडल है नहीं, ये तो 30 मिनट का कैंडल है, राइट. सो एक कैंडल में ही आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है. ओके, try to avoid this buys when it is below 200. Okay, better to go with sell only, and above 200 go for buy. And if in case you know, जब आप सेल कर रहे हो, if इसके ऊपर मैं भी माउस ओवर कर रहा हूं तो ये मेरे को नीचे यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जस्ट ए क्लीन ट्रांजिशन फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड. अगर इस टाइप का मिलता है देन इट इज गोइंग टू वर्क मोर एक्सीलेंट, परफेक्ट. ओके, और इसको हम लोग क्या क्या किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं. इसमें आप अपना प्राइस सेक्शन अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है. ठीक है, सिंपल प्राइस सेक्शन यू कैन यूज. यहाँ पर दिस इज अ वेरी क्लीन सेल सिग्नल यू कैन सी. और यहाँ पर देखिए, if you can notice here, I'm just trying to backtest some few days. यहाँ पर देखिए ये ना ऊपर है ना नीचे है, it is making, you know, the candles here, there is no clear buy signal or sell signal. Also ये जो है ऊपर की तरफ है. Okay, so avoid this. यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं है. ये यहाँ पर जो buy दिखा रहा है ये previous day का है, and we are not going to consider this buy signal because it is below 200 MA. We are going to consider this sell signal. Now what should be the stop loss? अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि अभी हम लोग ये ऑप्शन में कर रहे हैं, राइट. तो ये बोलना गलत होगा कि इस कैंडल के नीचे का जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे कि इस कैंडल का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, बिकॉज इसमें आपका ज्यादा नुकसान होने का चांसेस रहेगा. बिकॉज इट इज अ 30-minute कैंडल. अगर आप इसको स्टॉक्स में यूज कर रहे हो एंड यू आर प्लेइंग विथ इक्विटी, तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस में आपका रिस्क कितना है, लेकिन ये ऑप्शन है. सो द बेस्ट एंड इजी वे, क्योंकि आज का स्ट्रेटेजी जो है पूरा बिगिनर्स के लिए है, इसीलिए हम लोग काफी सिंपल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है, इट इज वेरी सिंपल, जो मैं हमेशा हमारे टेट्रालाइट मेंबर्स को भी सजेस्ट करता हूँ जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं. स्टॉप लॉस सिंपल, कीप 100 रुपीज. तो आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क कितना हो गया 2000 इन बैंक निफ्टी. और अगर आप थोड़ा सा और इसको कम करना चाहते हो देन गो फॉर 60 to 70 पॉइंट. लेकिन उससे नीचे का स्टॉप लॉस देना भी गलत है, बिकॉज बैंक निफ्टी तो इजीली 30-40 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस तो हिट ही हो जाएगा, है ना. सो एट एवरेज साइड 60 to 70 एंड अ गुड साइड स्टॉप लॉस 100 पॉइंट. अगर आपका पकड़ लीजिए बाइंग प्राइस है 300, देन कीप स्टॉप लॉस एट 200 पॉइंट्स. टारगेट क्या रहेगा, सिंपल, आप अपना रिस्क रिवार्ड में पकड़ सकते हो 1:1, 1:2, 1:3. लेकिन अब क्योंकि ये 30-minute का कैंडल है, देन इफ द नेक्स्ट कैंडल इज यू नो, अगर ये अच्छा खासा, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो प्ले दिस इन वेरी. अब यहाँ पर बाय सिग्नल मिला है, यू एंटर्ड हियर, don't exit till you get a sell signal. Okay, don't exit till you get a sell signal. Simple. If you can take the risk. Okay, otherwise simple. Next day gap up हुआ है, green हुआ है, okay, यहाँ पर थोड़ा सा रेड हुआ, चलो प्रॉफिट लो, निकल लो मार्केट से. सिंपल सी बात है. In that way you can do. Another simple approach is, here I got a green buy. Okay, here I got a buy. Let's wait. क्योंकि ये हमारा सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एमआर के ऊपर है, यहाँ पर भी तो व्हाइट ही है, कोई दिक्कत नहीं है. और मार्केट सेंटिमेंट सबको पता है कि रेड ही है, मतलब इट इज बेयरिश. व्हाट वी कैन डू, अब यहाँ पर एक गैप है, राइट, हियर इज अ गैप. ठीक है, थोड़ा बहुत ना दिमाग थोड़ा यहाँ पर लगाना पड़ता है. हियर आई गॉट ए बाय एट ए 9:15 कैंडल. 9:15 का कैंडल जो है, तो इसमें मेरे को बाय सिग्नल मिला है. सो लेट्स वेट बिकॉज इट्स ए 9:15 कैंडल, राइट. इतना तो सबको पता होगा, 9:15 कैंडल में थोड़ा सा आपको वेट करना है. अब नीचे आया, गैप फील हो गया, हैमर
1, 2 and 3. 3 white soldiers. 3 white soldiers. It is in price section. Chalo, I'm not going to price section for now. Simple. Rejection. Let's wait कि जहां पर हमको बाइंग सिग्नल मिला है तो इसका ब्रेकआउट होने देते हैं. We entered in the next candle here and we exit in the next candle. Okay, टाइम मिलता है तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर we can enter here and we can exit in the next candle either here or here. क्या फर्क पड़ता है? In this way. Same, let's say in the cell. Let's say in the cell. We got a cell here. It's a cell here. एमा के नीचे है. ये भी तो परफेक्ट. अगर ऐसा मिलता है ना जहां पर इस टाइप का आपको मिल रहा है तो ये तो आपका बिंदास एंट्री होता है. ओके, जस्ट जंप इनटू इट. आई विल से यहाँ पर आपको डायरेक्टली जंप ही कर देना है. सबसे बेस्ट है ये. ठीक है. और अगर आपको एक डबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो. हियर जैसे ही इसका ये थोड़ा टूट जाता है देन यू कैन एंटर. ठीक है. आई थिंक क्लियर हो गया. तो अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए. Sir, this will be done only in the options, right? No, you can no. You can use future based upon your risk appetite. You can use it in Nifty 50 stocks. कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. इक्विटी कैश आप इक्विटी कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हो. कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. मैं क्यों ऑप्शन बोल रहा हूँ? बिकॉज इन बैंक निफ्टी बेसिकली पीपल प्रीफर ऑप्शन मोर देन फ्यूचर, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स के पास उतना फंड होता नहीं है, और जिनके पास फंड होता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज फ्यूचर. Yes, but the thing is, in the future, in the option means we'll not be knowing which strike price we have to select. So better at that time we can. So in that time we can go for future, right? If you have fund, you can go for future. Future is always a right approach to trade. क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन भी जाता है ना, then you are going to make a huge profit in future. Now, if in option, actually it is a very good question. अगर मैं ऑप्शन में करता हूँ, then what should be the strike price? Yes. Now, remember two things. ऑप्शन में जब भी स्ट्रेटेजी चूज करो, नंबर वन थिंग इज आपके पास टाइम कितना है डीके का. आर यू गोइंग टू सिलेक्ट योर मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी? लेट्स से आपका एक्सपायरी तक का टाइम जो है बहुत ही कम है, 1 दिन 2 दिन है, देन बेटर टू गो फॉर इन द मनी और एट द मनी. सिंपल. Let's say here I got a buy signal, for example. Here I got a buy signal, for example. Then I'm going to use 19,200 or 19,000 CE. Simple. And if मेरे पास मतलब मंथली एक्सपायरी है, then थोड़ा सा ऊपर I can take 19,600 or 20,000 C I can take. But I always advise everyone to go with only in the money and at the money. Sir, I have one doubt. Yes, tell. Actually, in options there is no BO order, na? So how can we put at a time? How can we select target and stop loss in options? चलो. हाँ कल ऐसे होता नहीं. देखियो मतलब दोनों फोन रहे हो. ठीक है. Okay, in that case what I used to do, tell me. Okay. आप अपने काइट में जाके let's go to kite. ये क्वेश्चन जो है ये दरअसल बहुत लोग पूछते थे, तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ. Okay, sir. So basically क्या होता है, let's say I have a position in GIL, for example. Okay. So मैं कैसे ट्रेड करता हूँ? The way I trade, basically I first of all simply I take a position. Let's say position ले लिया. Now I am going to exit, stop loss. Okay. In stop loss I am going to put
मेरा स्टॉप लॉस लेट से 9 होना चाहिए. So in both triggered price and price I'm going to put 9 and sell. तो ये क्या होगा, ये आके मेरे ऑर्डर में आ जाएगा, राइट? Yes, sir. And now I'm going to put target. So go to exit. Okay. And limit, because Jirodha में क्या होता है कि ये तो लिमिट भी लेगा इसको. And Okay. I'm going to set target. Let's say अभी चल रहा है 18.80 and my target will be 14. So now sell. Okay. Simple. So आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आके ऑर्डर्स में पेंडिंग रहेंगे एंड विथ, और आपका जो भी एग्जीक्यूट होना रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा. Okay, sir. Okay, sir. That is the best way to deal with option. Okay, thank you, sir. Thank you. लेकिन जब स्टॉप लॉस लगाओ, दिस इज वन थिंग टू बी, यहाँ पर एसएल क्लिक करना है, इज वेरी Okay, इंपॉर्टेंट. okay. हाँ. ओके, और कोई डाउट नहीं है किसी को? ये शुभम, विद्यासागर, सर कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट वन सर, जो बाई सिग्नल और सेल सिग्नल के बारे में बोल रहे थे ना? which one I mean, कहाँ So से you बोला? told if you have any doubt you need to wait for the next candle to confirm. So that part sir. Okay. So my here let's say for example, let's say यहाँ पर मेरे को बाय मिला है. ओके. Yes. एंड ये 9:15 का कैंडल है, तो 9:15 का कैंडल को उतना आसानी से तो हम लोग रिलाय करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो Correct. अब क्या करना है कि यहाँ पर हमको एक गैप भी दिख रहा है, यहाँ पर हमको एक गैप भी दिख रहा है. इट्स गैप अप हुआ था ना थोड़ा सा. Yes sir. तो अब क्या करना है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है इस तरह से. बट हमको बाय सिग्नल मिला है, सो इन आवर माइंड वी आर इन बाय. Correct. ओके, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर ए राइट टाइम. हम बस टाइम का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं. बट वी हैव सेट इन आवर माइंड कि मेरे को करना तो है बाय. Bye. Correct. अब नेक्स्ट इज वी आर वेटिंग. यू कैन डू, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. जहां पर भी आपको इस टाइप का सिग्नल मिले, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कंसीडर दिस द कैंडल्स 50%, द कैंडल्स 50% as its first resistance. Okay sir. Okay, so you can backtest it, जो मैं बोल रहा हूँ. If any candle after your observation candle, let's say this is our observation candle. Okay, so इसके 50% के ऊपर अगर कोई भी कैंडल सस्टेन कर जाता है ना, then it is a 80% प्लस चांसेस कि ये इसका जो हाई था इसको ब्रेकआउट करेगा ही करेगा. यू कैन बैकटेस्ट इट. ओके, जब ये काम करता है, बढ़िया काम करता है. सो नाउ अगर इसको यहां से नीचे आना रहेगा तो ये इसके 50% से ही नीचे आएगा. देन यू हैव टू वेट फॉर ए सेल सिग्नल. सिंपल. Correct. Okay. लेकिन ये क्लियर था. ओके, तो ये 50% के ऊपर यहां से आपने एंट्री किया, और जब इसका हाई टूट गया, देन अगेन इट इज अनदर कंफर्मेशन कि अब तो एग्जिट करना नहीं है, अभी तो मार्केट को लूट के ही जाना है. सिंपल. Okay. ठीक है. और सुमन बोलिए, और कुछ है? ये विद्यासागर क्लियर? Clear sir. Clear. एंड Sir, how to learn about price action? अरे प्राइस सेक्शन में कुछ लर्न नहीं करना है. सिंपल सी बात मैं आपको एक क्लियर कट बताता हूँ. देखिए प्राइस सेक्शन में सिंपल से देखिए, प्राइस सेक्शन में ऑलवेज प्राइस सेक्शन इज अ वेरी बिग थिंग. इसके लिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है. You have to go for various and also in our public telegram channel जो है, मैं ट्रेड्स का जो ट्रेड के ऊपर जो हमने क्यों एंट्री किया था, क्यों बाय किया था, why you entered, तो मैं शेयर करते रहता हूँ. Okay, sir. द बेस्ट पार्ट, लेट्स से प्राइस सेक्शन का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको आज बताता हूँ. Okay, sir. आपको ना आपको बस 2-3 जस्ट प्रैक्टिस ऑन 2 to 3 पैटर्न्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, एंड इट इज गोइंग टू वर्क एक्सीलेंट. ओके, नंबर 1, W in the bottom. W in the bottom, not at the top. M at the top, W at the bottom. Okay sir. Okay, sir. Double top at the uptrend Okay, sir. and double bottom in the downtrend. Okay. It is very important. बहुत लोग क्या करते हैं कि W at the top पकड़ते हैं, तो वो गलत हो जाता है. नो,
अभी ये जो W, ये जो सिंपल W नेकलाइन के ब्रेकआउट पर यू कैन एंटर. Okay, sir. Okay, this is one of my favorite price action thing. One. Okay, sir. टू अगर मैं बात करूं प्राइस सेक्शन के ऊपर, और एक सिंपल सा जो है यहाँ पर मैंने क्यों बाय दिया था. नाउ लेट्स से इसको भी मैं सबको थोड़ा सा ये कर देता हूँ. प्राइस सेक्शन का बात चल रहा है, सो 15 मिनट्स में आया मैं इधर. ओके, सो ये 15 मिनट का मैं देख रहा था. ओके, 1 सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन एंड इट्स गोइंग अप. सो यहाँ पर देखिए रिजेक्शन 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 है ना. तो इसको अगर हम और थोड़ा सा भी क्लियरली देखें तो बेसिकली यू कैन सी अ W हियर. यू सी इट्स अ W. Yes, sir. So, इसके ऊपर you should go for buy, and if you will check the time 11:30 is the time जब मैंने buy बोला था, because Okay, sir. तो इस नेकलाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट हो चुका था, इसलिए I said कि go for buying बैंक निफ्टी. Okay. और दो पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ प्राइस सेक्शन. आप यहाँ पर भी देखिए, here is also simple. This is your neckline breakout, enter. Okay. And two very good patterns. और दो अच्छे पैटर्न्स होते हैं, वो भी मैं आपको, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको W दिख रहा है. Yes, sir. दिस इज द नेकलाइन ब्रेकआउट, एंटर. अगेन यहाँ पर भी है नेकलाइन ब्रेकआउट पे बाय है, W क्लियरली दिख रहा है. और एक होता है, अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा 1 मिनट पे चलते हैं ताकि आपको अगर 1 मिनट में, अगर आप इफ यू आर प्लेइंग इन फ्यूचर, देन इन 1 मिनट यू कैन सी मल्टीपल many things, means there are many patterns in one day itself. यहाँ पर W है देखिए, यहाँ पर M है, यहाँ पर W है. Here is M. So आप यहाँ पर देखिए. Okay, this is one of second interesting and very 85% इसका रहता है probability. मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको. ये वाला जो चीज है, it works excellent. This is one. ये थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपको ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, टू ट्रेन योर आईज. ओके, दिस ये कौन सा पैटर्न है? W pattern. W. नो, हाँ ओके, W पैटर्न चलो. लेकिन W पैटर्न में क्या होता है कि योर बोथ लोज आर सेम. Okay. Okay. लेकिन यहाँ पर दरअसल इट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर. Yes, sir. Left shoulder, head and right shoulder. Right shoulder is lower than the left shoulder. So it's, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट होता है हमेशा. And this movement is always classic movement. ये हमेशा बेहतरीन एक क्लासिक मूवमेंट होता है. Okay, this is one. And और एक दिखाता हूँ आपको. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो. Let's say पूरा यहाँ पर है, ये देखिए, तो यहाँ से ब्रेकआउट है नीचे की तरफ. These are quite very classic price actions trends जो होते हैं, ये बढ़िया से काम करता है इसमें. ठीक है. So basically two price actions simply. This is one price action trend होता है इस तरह से, left, head and right. तो ये होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है, मतलब इस नेकलाइन के नीचे अगर कट जाए तो. एंड दिस मोमेंटम वाज वेरी ह्यूज. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ता है. ओके, सो टेट्रालाइट मेंबर्स कुछ है यहाँ पर, सो दे हैव रिमेंबर्ड PEL, बाटा इंडिया. सो वो सब उसी टाइप का ही ट्रेड्स थे. हम लोगों ने एंट्री लिया और स्टॉक जो है भागना स्टार्ट कर दिया था. तो ये इस टाइप का काम करता है. दिस इज वन हेड एंड शोल्डर. यहाँ पर हमको शॉर्ट पोजीशन दिखता है. एंड सेकेंड वन इज डाउन ट्रेंड में इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इस टाइप का. Okay. राइट शोल्डर हमेशा लेफ्ट शोल्डर से छोटा होता है. सिंपल दिखता है. आप इसे कोई भी स्टॉक्स लेके देखोगे तो आपको दिख जाएगा. और एंड दिस M and Ws आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन M and Ws. So let's say if in uptrend, एक सिंपल सा तरीका यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे सिंपल तरीका है
if as a price action trader, if I'm not using any indicators, so basically just simply minimize your chart like this. Okay, minimize your chart, simple. Okay, so now what you can see कि यहाँ से हमको अभी अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से हमको अभी अप ट्रेंड दिख रहा है. Okay, so wait, you can enter in every W breakout, enter in every W breakout, every W breakout. And here is a very good thing, ये मैं आपको कुछ मिला है अच्छा चीज, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ. This one, this one, never ever miss this. ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको एक W है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि ये जो नेकलाइन, दिस इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक लास्ट किस होता है, ठीक है, और दिस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट. दिस इज ए गोल्डन एंट्री पॉइंट, जिसको मैं हमेशा जैकपॉट पॉइंट बोलता हूँ. अगर आपने ऐसे एक लकीर खींचा हुआ है, लेट्स से आई हैव ए, आपको ये मिल जाएगा, जस्ट ट्राई टू हियर आल्सो, देखो यहाँ पर भी देखो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, here is a rejection, 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 here is the breakout. Okay, done, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट तो हो गया. Okay, so many people try to enter here, that is not bad, I am not going to say कि ये कुछ गलत हो रहा है, no, not like that, but the actually the perfect entry point is here, because आपको यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन मिलता है कि now the resistance becomes support. And the chances of upward movement is now more than 85%. Damn sure, and it is going to work excellent, perfect होता है. ठीक है, और कुछ? Sir, and what is the time frame we need to use, sir? In price action? Yeah, sir. अरे ये तो अभी हम लोग टॉपिक से बाहर आ गए, स्ट्रेटेजी से बाहर आ गए. ओके, सो जो स्ट्रेटेजी में था वो था 30 मिनट का, बट इफ यू आर ए प्राइस एक्शन ट्रेडर एंड यू लव प्राइस एक्शन, सो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, फॉर फ्यूचर माय फेवरेट टाइम फ्रेम इज 1 minute to 3 minute. Okay, sir. Or maximum 5 minutes you can go. Okay. Okay. And for normal in stocks and options 15 minute. अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो, और अगर आप एक स्कैल्पर हो, जो होते हैं ना स्कैल्पर, दो मतलब 2 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए करते हैं, then you can go to 5 minutes. लेकिन 5 minutes is much more noisy, and the reason I choose this 15 minutes is, अगर आपका एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर एक भी ग्रीन बनता है ना, देन उस डे का प्रॉफिट आपका हो गया, खत्म. ओके सर. लेकिन 5 मिनट में क्या होगा कि मे बी यू हैव टू वेट. करेक्ट सर. थोड़ा वही प्रॉब्लम होता है, लेकिन 15 मिनट 30 मिनट में तो और अच्छा है. इफ द नेक्स्ट कैंडल इज अ ग्रीन एंड यू आर इन अ बाइंग पोजीशन, तो आपका ट्रेड खत्म, मतलब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आप आराम से निकल जाओगे. यू डोंट हैव टू वेट मोर टाइम इन द मार्केट. ओके सर. ओके, ठीक है, तो इसको मैं और किसी का कुछ है तो बोल दीजिए, डाउट्स. नो सर, कंटिन्यू सर. ओके, ये शुभम कुछ डाउट है? शुभम नहीं है शायद, नहीं है. ओके, चलो ठीक है. ये विद्यासागर कोई डाउट्स नहीं है? ओके, नहीं सर, क्लियर. ओके, ज्योति डाउट्स क्लियर? ठीक है, सो क्लियर सर. क्लियर. ओके, और कुछ डाउट नहीं है? सो बेसिकली यू कैन चेक देयर स्ट्रेटेजी. प्राइस सेक्शन वी कैन डू ए सेपरेट क्लास. ओके, जो है प्राइस सेक्शन इज ए वेरी बिग थिंग, एंड जो भी प्राइस सेक्शन में इंटरेस्ट रखता है, इन नेक्स्ट संडे और at your preferable time we can schedule a class for a free class, definitely in price action, because I'm a price action trader. But yeah, that will be fine, sir. But this strategy, regarding this strategy, you can backtest it, practice it, and you know, if you found it useful, then you can start with at least one lot. Yes sir. ठीक है, चलो, thank you very much for the meeting. And so one more doubt sir. हाँ जी सर, आप सेफ ट्रेड रिस्क ट्रेड बोल के आप मैसेज करते हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सर? अरे सेफ ट्रेड
Means safe trade means you need to take one lot and risky trade you need to take two lot. Anything like that? Anything? No. Safe trading means your risk is the probability is more than 85%, 90%. Okay, sir. Let's say we are trading in a channel. एक channel चल रहा है. Okay, and sir. we entered our sell position here. Okay, sir. We entered our sell position here, so it should come down. It may not come down, right? So Okay, it's a risky trade. Risky trade. Okay. And which one is a safe trade? I just told you. Correct, sir. Breakout. Yes. This one breakout sustained, now going up. We entered here. This is our stop loss. एंड ये जो है इसका डबल आपका टारगेट है या फिर द प्रीवियस स्विंग हाई इज योर टारगेट. ये हो गया सेफ ट्रेड. ये जगह मोड़ बर्ತೀನಿ. Okay. Sir, one more doubt. जी. Sir, what is the what is fake breakout? How to avoid the fake breakout? मशरूम कल्पकोंడి. फेक ब्रेकआउट I just told. Give the example of fake breakout, sir. ब्रेकआउट में देखिए ये अगर यहाँ पर ये सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ आता है, then it's a fake breakout. So Okay, sir, how to avoid this? No, you can't avoid it. False breakout cannot be avoided. False breakout you cannot avoid it. You can do one thing. Just जब भी ऐसे कुछ breakout होता है ना, breakout के बाद you have to wait कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाए. Okay, sir. You need to see the candle क्या बना रहा है, डोजी बना रहा है या फिर आपका मारूबुजू बना रहा है, क्या बना रहा है, that you can see. और Okay, sir. and even इसका breakout पर अगर you enter then it is more good, but no one in the market can predict false breakout. Okay, sir. ठीक है, चलो. Thank you very much for the meeting and I'm going to share this video in your WhatsApp. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. जी, थैंक यू. फिर क्लास करेंगे कभी प्राइस एक्शन के ऊपर. ओके.